So good morning once again. Today we will start our next exercise, that is exercise 12.2. So in 12.2, as we know in our coordinate geometry that if we have to find the distance between two points, like the points are A and B, this point is A and similarly here one point is here which is B. Because here I am talking about coordinate geometry, means two dimensional geometry. So let the coordinates are x1, y1 and x2, y2. So what is the distance between these two points? The distance between these two points is AB is equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Okay, this is the formula in coordinate geometry. But now here we are studying here three dimensional geometry, So in this, what we have to study? Suppose two points are there. That this is point A and here is point B. And if we talk about their coordinates, there is x1, y1, z1. Similarly here x2, y2, z2. Then if you have to find the distance between A and B, if you have to find the measurement of AB, then AB is what? Under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square. Okay, so these are the things which we have to follow here. So now I am starting with one question. Here in our exercise, we are studying exercise 12.2. Okay, so in this exercise 12.2, question number 1, they are saying find the distance between the following pairs of points. First one is 2, 3, 5 and 4, 3, 1. So let A is 2, 3, 5 and B is 4, 3, 1. 4, 3, 4, 1. So 2, 3, 5 and 4, 3, 1. So the same formula we have to use here, which I wrote here. Na AB is equal to under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square. So here if I compare these things, it is x1, y1, z1. Here it is x2, y2 and z2. So as we have to find the distance between them, so we have to find actually AB here. And what is AB? AB should be 4 minus 2 the whole square plus 3 minus 3 the whole square plus 1 minus 5 the whole square. Here it is 4 minus 2 is 2 square plus 0, it remains 0 only, 1 minus 5 minus 4 the whole square. Then it becomes 2 to the 4 plus 0 plus the 16. Here it is root 20. Answer is root 20, but we can write 4, 5 ja 20. So 4 when comes out, it becomes 2 root 5. And it is AB. And if you want to mention the unit, you can also mention the unit. Okay, so answer is 2 root 5. 2 root 5. I think the concept is clear. Okay. Now the next question is second part. It is the first part of the question number 1. Now we are on the second part. In second part, what they are saying? They are the points are let A is minus 3, 7, 2 and B is 2, 4, 1. Actually एक्सरसाइज में तो इस तरीके से कि उन्होंने सिर्फ दो पॉइंट्स गिवन है -3, 7, 2, 2, 4, -1. लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है तो वो कैलकुलेशन थोड़ी ज़रा इंटरेस्टिंग सी हो जाए, इसलिए मैंने उन पॉइंट्स का नेम सिलेक्ट मान लिया कि जो पहला पॉइंट है वो A है और जो दूसरा पॉइंट है वो B है ना. अब मैं यहाँ से कंपेयर करूँगा x1, y1, z1 और x2, y2 और z2 से, है ना. किसे कंपेयर करने वाला हूँ? x1, y1, z1 करने वाला हूँ और इधर x2, y2 और z2 तो क्या होने वाला है? Now AB is what? AB is under root x2 minus x1 का यानी 2 minus plus. ये बात ध्यान रखना है, प्लस लगाएंगे 2 plus 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 minus 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 2 का होल स्क्वायर. ये बात आपको समझ में आ रही है ना. फिर हो जाएगा सर 2 plus 3 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 minus 6 minus 3 का होल स्क्वायर और प्लस का 1 minus 2 यानी minus 7 का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा सर 25 प्लस का 9 और प्लस का 1. तो देखिए 25 और 1 26 है ना. 26 और 9 कितना हो जाएगा 45. जस्ट अ मिनट. 2
5, 4 minus 7 minus 3, है ना, and 1 minus 2 minus 1. So minus this is 25 plus 1 20, 25 plus 1 26 and 9 29, sorry 26 and 9 35. So answer is root 35. Okay. एक्चुअली यहाँ पर एक गलती हो गई है थोड़ी सी, वो ये है कि जो b है -1, ठीक है, b क्या है यहाँ पर -1, तो अगर b -1 तो अपनी माइनस लगा -1 -2 बन जाएगा -3, ठीक है, तो -3 इसका भी हो जाएगा प्लस का 9, अब ठीक है ना, तो 9 और 9 18 और 25 अभी बनेगा 43, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 43, इसे हम 43 लिखेंगे ऑप्शन, ठीक है, आप चाहे यूनिट्स ले सकते हैं, आप ये आपका चलो, तो वही समझ लें, इसका आंसर 43 आने की तैयारी करेंगे, क्योंकि मैंने वहां पर -1 लिख दिया, नहीं लिखा था, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। नाउ द थर्ड पार्ट है, नाउ द थर्ड पार्ट let first point is a and the coordinates are -1 3 -4 and b coordinates are 1 -3 and 4. once again I am checking -1 3 -4 1 -3 and 4, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फिर से अपना वही फॉर्मूला पुट करेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा ab = और इसका नाम फिर से x1 y1 और z1, सिमिलरली यहाँ पर x2 y2 और z2, ठीक है, तो जाएगा ab = x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल स्क्वायर। समझ में आएगा, 1 plus 1 minus 3 का होल स्क्वायर 4 plus 4 का होल स्क्वायर, so it becomes 1 plus 1 2 का स्क्वायर प्लस minus 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, है ना, then it becomes 4 plus 36 प्लस का 64, है ना, अब देखिए 36 और 4 कितना हो गया 40 plus 64 is nothing but 104, ठीक, अब आप 104 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 104 को आप लिख सकते हैं 26 4 जा, है ना, so 26 4 जा, so 4 comes out, it becomes 2 root 26 units, क्या हो गया ये, आप जरूरी है हमारे यहाँ पर AB लिखे, आप P Q R S कुछ भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्टैंडर्ड है, मैं कोई AB यूज करके चल रहा हूँ, ठीक है, so this is up to our third part. Now if we talk about the fourth part, so what is there in the fourth part? Fourth part, let A is 2 minus 1 3 and B is -2 1 and 3, फिर से करने दें 2 minus 1 3 minus 2 1 3, ठीक है, तो क्या होने वाला है यहाँ पर, इसे x1 y1 z1 सिमिलरली x2 y2 और z2, तो a भी हो जाएगा यहाँ से सर, तो रूट में x2 minus x -2 minus का 2 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 1 होल स्क्वायर, कितना है 1 प्लस का 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस का 3 होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा सर माइनस के 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, तो 0 रहने वाला है ना, तो 0 कैंसिल होनी चाहिए, ये हो जाएगा सर 16 प्लस का 4, है ना, ये हो जाएगा रूट 20, और रूट 20 को लेकर कुछ कहने नहीं आता, क्या हो जाएगा 4 500 2 आ जाएगा रूट में 5 आ जाएगा यूनिट्स, ये मेरे से फिर से और डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है, यहां तक ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो आई विल जस्ट रनिंग दिस क्वेश्चन, ओके, now in question number 2 they are saying show that the points, actually 3 points are given here and they are saying show that these 3 points are collinear, so collinear मतलब कि तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पर लाइन करने चाहिए, है ना, तो उसके लिए क्या तरीका है, मैं पॉइंट्स लिख लेता हूं फिर मैं आगे बात करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2
given points मैं इसका पहले वाले का ए रख लेता हूँ -2 3 5, दूसरे वाले पॉइंट का नाम बी रख लेता हूँ 1 2 3 एंड तीसरे पॉइंट का नाम सी रख लेता हूँ 7 0 माइनस। एक बार फिर से पॉइंट चेक कर लेते हैं -2 3 5 1 2 3 एंड 7 0 माइनस। अब जरा समझिएगा कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में कब लाई करेंगे। ध्यान से समझिए ये लाइन है, तीनों पॉइंट यहां पर लाई कर रही है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। मुझे नहीं पता ए किधर है बी किधर है सी किधर, लेकिन तीनों ही पॉइंट तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे, ये तो पक्की बात है। ये मुझे प्रूफ करना है एक्चुअली, है ना। तो हमें करने के वालों में करने के वालों इस प्रकार में ए बी डिस्टेंस फाइंड करना हूं, एक दूरी आएगी, फिर मैं बी सी डिस्टेंस भी फाइंड करता हूं और लास्ट में ए सी डिस्टेंस भी फाइंड करता हूं। ठीक है, तो ये तीन डिस्टेंस फाइंड करूंगा। अगर किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर होता है, फिर से समझिएगा ध्यान से, मैं यहां पर तीन साइड डिस्टेंस ही फाइंड करने वाला हूं। अगर इन तीनों डिस्टेंस में से किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर होता है, इस कंडीशन में तीन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे फिर से यहां से एक्चुअली मुझे यहां फार्मूला का डिस्टेंस फार्मूला लगाने वाला हूं, है ना। तो क्या होगा, इसका मैं यहां पर ए फाइंड करूंगा। तो ab के लिए मैं क्या लिखूंगा, ab = रूट में 1 प्लस का 2 होल स्क्वायर 2 माइनस का 3 होल स्क्वायर और 3 माइनस का 5 होल स्क्वायर। समझिए, ध्यान समझिएगा, ab a और b, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा सर 1 + 2 3, है ना, 3 का स्क्वायर 9। ये हो जाएगा सर 2 - 3 -1 -2 का स्क्वायर प्लस का, ये हो जाएगा 3 - 5 -2 -2 का स्क्वायर 4, 9 1 10 और 4 रूट का 40। मेरा ए बी आ चुका है सर रूट 40, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं बीसी। बीसी क्या होगा सर, देखिए ये और ये, तो इसको लगेगा रूट में आ जाएगा 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा सर, ये बनेगा 7 - 1 6 6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 0 - 2 -2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 - 3 -4 तो -4 का स्क्वायर 16। तो देखिए फिर क्या हो गई, 36 और 40 40 और 16 रूट में 56। कितना हो गया, रूट में 56। तो क्योंकि मैंने यहाँ से पहले रूट 40 लाया था, तो इसलिए मैंने 14 4 जा 56 होता है ना, तो 4 बाहर आ जाएगा 2 रूट 40। क्या हो गया, 2 रूट 40। ये वाला आपको कंट्रोल करने भी आई है ना। नाउ थर्ड वन वी हैव टू फाइंड एसी। एसी क्या हो जाएगा सर, अगर बात करूं एसी की, तो एसी क्या हो जाएगा, रूट में देखिए ए ये है और सी ये है। ठीक है, फिर से वैल्यू करता हूं, x2 - x1 का होल स्क्वायर तो 7 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर, -1 - 5 का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा 7 + 2 9 9 का स्क्वायर 81 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस -6 6 का स्क्वायर 36। ये कितना हो गया, 81 और 9 90 हो गया, 90 और 36 126। ठीक है ना। और 14 9 126 होता है, 9 भाग में आ जाते हैं 3 रूट 14 बचेगा। इजी, आई थिंक आपको क्लियर हो है ना। हेंस जरा देखिए, क्या इनमें से कोई सी दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर है। जरा देखिए, AB कितना है रूट 40, BC कितना है 2 रूट 40। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आंसर आएगा 3 रूट 40, दैट इज इजी। ओके, तो आप लिखेंगे थस AC is equal to AB plus BC। कैसे सर, देखिए ये लिखा हुआ है 3 रूट 40 और ये लिखा हुआ है रूट 40 प्लस का 2 रूट 40, तो ये क्या आ जाएगा, ये स्पेशली 3 रूट 40 की हो जाएगा। ठीक है, तो 3 रूट 40 3 रूट 40 के बराबर हो चुका है, तो आप लिखेंगे हेंस these 3 points are collinear। up to any doubt? Okay, now next question। In the next question, first I'll just grab this thing, just a minute।
Now, question number 3. In question number 3, part first, they are saying verify the following. Here we have to actually verify that these three given points are the vertices of isosceles triangle only. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि isosceles triangle की प्रॉपर्टी क्या होती है. Isosceles triangle मतलब कि जहां पर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो वो ट्रायंगल कौन होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है. फिर से हम यहाँ पर यही करते हैं, तीनों पॉइंट है, इसे हम ABC मान लेंगे और उसके बाद उनके डिस्टेंस फाइंड करेंगे. अगर कोई से भी दो डिस्टेंस इक्वल आते हैं, हेंस द गिवन पॉइंट्स आर ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल. है ना. चलिए, तो गिवन क्या है, लेट A क्या है 0 7 -10, B क्या है, B है 1 6 -6 एंड C क्या है, C है यहाँ पर 4 9 माइनस. मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ. 0 7 -10 1 6 -6 4 9 -6. मैंने बताया कि आर की वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की सारे कैसे वर्टिसेस हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस ये प्रूफ करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले AB फाइंड करने वाले हैं. AB क्या हो जाएगा सर, AB हो जाएगा 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -6 प्लस 10 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू, देखिए भाई 1 - 0 1 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 7 -1 का स्क्वायर प्लस 1 -6 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 4 4 का स्क्वायर 60. ठीक है, तो ये जाएगा सर AB हो चुका है कितना 16 17 18 रूट में 18. 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 80 को लिख सकता हूँ 9 2 जा 80 ना, 3 बाहर आ जाएगा. AB इज इक्वल हो जाएगा 3 ये वाला आंसर में आता है ना. उसके बाद फाइंड करते हैं, BC में ही फाइंड कर देता हूँ. BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा सर 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -6 प्लस 6 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये तो 0 हो जाएगा. ठीक है, और ये क्या बचेगा 4 - 1 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 - 6 3 3 का स्क्वायर अगेन 9 और ये क्या है, तो 0 बचा है, 0 रहेगा. तो ये हो चुका है BC इक्वल टू हो चुका है फिर से कितना 18 एंड इट इज नथिंग, इट इज BC. ओके, BC इज नथिंग बट 3 ठीक है. अब हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर AC फाइंड कर लेते हैं. तो देखिए वैसे तो जो हमारा काम हो रहा है वो तो हो चुका है. ठीक है, देखिए ये भी 3√2 आया, ये भी 3√2 आया, लेकिन हमें थर्ड साइड चेक करनी पड़ेगी. हो सकता है यूनाइटेड ट्रायंगल आइसोसेलेस तो प्रूफ हो चुका है, लेकिन अभी हम ये चेक करना है कि थर्ड साइड में 3√2 तो नहीं है. तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, AC A और C. यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको जैसा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर. ये क्या बना देगा सर, ये हो जाएगा 4 - 0 4 4 का स्क्वायर 60 प्लस 9 - 7 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस -6 प्लस 10 4 4 का स्क्वायर 60. तो देखो ये 16 4 20 और 16 36, ये 36 हो गया. ठीक है, तो 36 नथिंग बट BC इज इक्वल टू 6. यहाँ पर आगे ध्यान रखिएगा कि AC की वैल्यू प्लस माइनस 6 नहीं है, क्योंकि AC एक्चुअली डिस्टेंस है ना. तो डिस्टेंस या दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है. यहाँ पर मैं AC की वैल्यू थोड़ा 6 कर रहा हूं, तो आप लिखेंगे आज प्लस AB is equal to BC and that is what 3√2. Hence the given vertices are of isosceles triangle और ये hence verified. वेरीफाई हो चुका. ठीक है, नाउ द सेकंड पार्ट इज, इन द सेकंड पार्ट वी आर सेइंग three again they are giving us the three coordinates and now they are saying are the vertices of a right angle triangle. क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो यहाँ पर हमने क्या प्रूफ करना होगा, फिर से डिस्टेंस निकालेंगे तीनों, और तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद हम लोग क्या प्रूफ करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम होगा, है ना, कि किसी भी मतलब कि जो हाइपोटेनस होगा यानी कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उसका स्क्वायर जो है इज इक्वल टू सम ऑफ द रेस्ट टू ऑफ द साइड्स ऑफ, है ना, उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर है या नहीं. अगर ऐसा होता है तो राइट एंगल है, अन्यथा नहीं. तो मुझे बोल रहा हूं करके दिखाना और चीजें क्लियर होंगी आपको. यहां से सेकंड लेट A is कितना हो जाएगा 0 7 10 0
7 10 20 -1 6 6 and C -4 9 और 6। एक फिर से चेक करता हूँ 0 7 10 -1 6 6 -4 9 6। हमें प्रूफ करना है आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है या फिर नहीं है? ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पहले सेक्शन हम फाइंड कर लेते हैं AB, बिल्कुल सीधा करेंगे। AB रूट में आ जाएगा -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 10 का होल स्क्वायर। फिर मैं क्या -1 -0 का होल स्क्वायर 6 7 का होल स्क्वायर 6 10 का होल स्क्वायर। सर AB हो जाएगा, देखिए -1 -0 -1 होएगा -1 का स्क्वायर प्लस का प्लस 6 7 -1 आएगा -1 का स्क्वायर फिर से प्लस हो जाएगा प्लस 6 10 माइनस का स्क्वायर 60 हो जाएगा 60 70 और 80। इसे मैं रूट 80 ले लेता हूं। इतने रख दो क्योंकि मुझे स्क्वायर करना है, तो क्या टेंशन लेना, अभी इस नहीं रखना है क्योंकि मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं तो साइड से मुझे स्क्वायर करना होगा, तो इतना मैं दिमाग में है नहीं बात कि हां ठीक है अभी से मैं ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूं। सिर्फ a = रूट 80 ले लेता हूं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये ab को 80 रखना है, फाइंड कर लेंगे bc के। तो bc क्या हो जाएगा इसमें से bc = हो जाएगा bc -4 प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 6 का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा -4 प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9 - 6 3 का होल स्क्वायर 9 और ये तो 0 हो जाएगा है ना। तो सर यहां से bc की वैल्यू कितनी आ चुकी है, रूट में 18 आ चुकी है। लास्ट में हम लोग बात करें ac के लिए, तो देखिए ac क्या है, a और c, ठीक है। तो -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 10 का होल स्क्वायर। सर ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर यानी कि 60 प्लस 9 - 7 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 6 - 10 -4 का होल स्क्वायर 60। तो देखिए 16 16 ऐड 4 36 यानी कि रूट का 36। मैं अभी से 6 नहीं लिख रहा हूं, इतने लिख रहा हूं, ठीक है। AC = रूट 36। अब देखो देखने में कौन सा जाएगा, दिखाई दे रहा है कि हम ये वाला सबसे ज्यादा है। तो if these three are the coordinates of right angle triangle, it means what, it means AC square should be equal to the sum of AB square plus BC square। ठीक है, चेक कर लेते हैं। now AC square is equal to AB square plus BC square। तो AC square कितना है सर, तो रूट में 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट का 18 स्क्वायर प्लस रूट में 18 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, मिल जाएगा 36 इज इक्वल टू 18 प्लस 18। क्या ये बात सही है? हां जी सही है। अगर सही है तो फिर से आप लिखेंगे यस द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल एंड hence very good। ठीक है, so this is the solution of this part, है ना। now for the third part I'm just doing these things, okay। third part, so here in third part they are saying again this time four vertices they are given to us, four coordinates they are given to us and they are saying are the vertices of parallelogram। हमें बताना है कि चार में चार पैरेललोग्राम कोऑर्डिनेट्स है या नहीं, या वर्टिसेस है या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें फिर से डिस्टेंस फाइंड करनी होगी और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी ये होती है कि क्वाड्रेटिक टाइप होता है, आप उसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप टेक कर। इसी तरीके का पैरेललोग्राम है, एक रेक्टेंगल में यहां पे पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है।
कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। लेट a -1 to 1 b 1 -2 5 c 4 -7 8 एंड d हो जाएगा 2 -3 और 4। फिर से देख लीजिए, a है -1 to 1, b है 1 -2 5, c है 4 -7 8 एंड d है 2 -3 और 4। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि पैरेललोग्राम होता क्या है, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो, ठीक है, तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हम यहां पर ab का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ab क्या हो जाएगा सर, ab हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर। फिर समझ लीजिए 1 - 1 यानी 1 + 1 -2 का होल स्क्वायर 5 - 1 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा सर 1 + 1 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 -2 -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 5 - 4 4 का स्क्वायर 16 अगेन इट इज √36 है ना। ab की वैल्यू कितनी हो गई, √30। इसे मैं और से लिख सकता हूं ab = 6, क्योंकि हम लोग स्क्वायर थोड़ी कर रहे हैं। ab = 6 है ना। बात करते हैं bc के लिए। bc कितना हो जाएगा सर, bc हो जाएगा देखिए 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -7 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया है 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस -7 + 2 -5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 - 5 3 का स्क्वायर 9 9 और 9 18 और 25 कितना हो जाएगा 43 होगी रूट वाला। bc की वैल्यू होगी √43, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग cd। तो cd कितना हो जाएगा सर, cd के लिए हो जाएगा 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 8 का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16। तो फिर से कितना हो चुका है, √36 हो चुका है cd की वैल्यू। और यहां से cd कितना हो जाएगा, यहां से cd 6 आ चुका है, ठीक है। आप इनकी यूनिट्स लिखते रहिएगा ना। यहां पर आप लिख सकते हैं a = 6 यूनिट्स, bc = √43 यूनिट्स एंड cd = 6 यूनिट्स। फिर इसके बाद क्या आएगा, हम लोग ad फाइंड करने वाले हैं। ad क्या हो जाएगा सर, ad हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा सर 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 - 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए 9 और 9 18 18 25 अगेन रूट में 43 कितना होता है 8। अब चलिए मैं सुनिए आप ad की वैल्यू हो चुकी है √43। अब देखिएगा ये जहां पर के चार पॉइंट थे a b c मैंने इसे इससे ड्रॉ कर दिया और ये हो गए a b c d, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ad कितना आएगा मेरा 6, ab 6 आएगा, इधर cd कितना आएगा, इधर cd मेरा 6 आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर मेरा bc √43 आएगा, यानी ये वाली 43 आएगी और यहां पर मेरा ad कितना आएगा √43 है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली, देखिए ये इसके बराबर हो रही है और ये वाली साइड इसके बराबर हो गई। thus the given coordinates are the coordinates of the vertices of the parallelogram, okay। और आप लास्ट में देखेंगे here क्या है, AB = CD and BC = AD। तो क्या आएगा, hence verified, ठीक है। ये वेरीफाई हो चुका है कि हाँ ये जो वर्टिसेस हमें गिवन थे इसके वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 4 दे आर सेइंग
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स इतना इतना, यानी कि दो पॉइंट्स उन्होंने पहले गिवन कर दिए। सपोज करिए पॉइंट्स है मेरे ए एंड बी, सपोज करिए पॉइंट ए यहां पर है ना, ये पहले से लिख देता हूं मैं। लेट ए कितना है मेरे पास, ए है 1 2 3 एंड बी कितना है मेरे पास, बी है 3 2 माइनस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ लीजिए, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स। हमें एक इक्वेशन बनानी है उन सारे ही पॉइंट्स के सेट की व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स सेलेक्टेड, जो कि इन दो पॉइंट से बराबर दूरी पर है। तो हम मान के चलते हैं कि कोई बराबर दूरी पर पॉइंट है P, ठीक है, जैसे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B। अब कोई एक पॉइंट है P ये वाला, ये इसकी दूरी इससे और इसकी दूरी इससे बराबर है, ठीक है, इसकी दूरी इस पॉइंट A से और इसकी दूरी इस पॉइंट B से बराबर है। और लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज x1, y1, z, ठीक है। अब यहां से मैं अपना फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा और यहां से हम लास्ट में जाके हमारे इसमें एक इक्वेशन बनकर आएगी और सेटिस्फाई करेंगे उन सारे पॉइंट्स के सेट्स को जल्दी इस a और b से इक्वल दूरी पर आएंगे, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करने वाला हूं, लेट पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1 आर द let point P is equidistant from A and B। तो क्या हो जाएगा, PA is equal to PB हो जाएगा। भाई P से A का A और B इक्विडिस्टेंट है, P PB बराबर होगा P actually होगा कैसा, जो PA है वो होगा देखिए PA, तो क्या होगा x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y minus 2 का होल स्क्वायर प्लस z minus 3 का होल स्क्वायर, और ये किससे बराबर होगा, p भी क्या है, p भी है, ये वाली p भी हो जाएगा x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y minus 2 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस के 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स तो एडर खत्म हो जाएगा और हमें इसके स्क्वायर से करना होगा, ठीक है। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y, z स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6z। समझ लीजिए क्या कर रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस का 2x, y माइनस 2 का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस का 4y, z माइनस 3 का होल स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस का 6z। सिमिलरली वी हैव टू डू द पेयर ऑफ स्क्वायर इक्वेशंस। ये हो जाएगा सर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस y स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y प्लस z स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का ट्वाइस ऑफ z, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या होगा कि सर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया और z स्क्वायर से z स्क्वायर, ये तो इस तरह से दिख रहा है ना। बाकी और चीजें कुछ कैंसिल होनी है तो चेक कर लेते हैं, ये माइनस का 4y है, ये माइनस का 4y, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये प्लस का 1 है ना, और यहां पर भी ये प्लस का 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। सर ये देखिए प्लस का 9 है और ये भी प्लस का 9 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 4 है और ये भी प्लस का 4 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या कुछ और बच रहा है, और तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बच रहा है, ठीक है। तो देखिए ये माइनस का 2x, ये माइनस का 6x, ये हो जाएगा माइनस में जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, तो प्लस का 6x माइनस का प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का 4x। ये बचा है माइनस 6z, जब आप प्लस का 2z इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बच जाएगा माइनस का 8z = 0। यहां से मैं 4 कॉमन ले लूं तो हो जाएगा x - 2z = 0। एक्चुअली 4 जब साइड चेंज करेगा तो ये भी 0 ही बन जाएगा। तो लास्ट में हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आ चुकी है, x - 2z = 0, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, राइट डाउन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, चलिए now in the fifth question what they are saying here, find the equation of the set of points P। वही तरीके से क्वेश्चन ही फाइंड करनी है यहाँ पर भी। अब इसमें गिवन क्या है, गिवन है द सम ऑफ उस डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B इक्वल टू 10। इस बार उन्होंने इक्वल डिस्टेंस नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो सम है उस पॉइंट P
P का इस पॉइंट A और B से वो कितना होना चाहिए, वो 10 के बराबर होना चाहिए। तो गिवन क्या है, गिवन दैट A पॉइंट है गिवन है हमें, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 4,0,0 एंड एक पॉइंट हमारे पास B गिवन है, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है सर, -4,0,0, ये दो पॉइंट हमारे पास गिवन है A और B है ना। सो एक हम पॉइंट मान लेते हैं, लेट P is the point whose coordinates are x1, y1, z1 and according to क्वेश्चन है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये है कि जो PA और PB की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, वो 10 होनी चाहिए। ये बात आप ध्यान देकर सुनिए, ठीक है। तो अब यहां पर हम शुरू करते हैं। तो PA क्या होगा, PA होगा सर x1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y1 -0 का होल स्क्वायर प्लस z1 -0 का होल स्क्वायर प्लस, ये तो हो गया मेरा PA है ना। अब बात करते हैं PB कितना हो जाएगा, PB हो जाएगा x1 +4 का होल स्क्वायर प्लस y1 -0 का होल स्क्वायर प्लस z1 -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 10। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा लेकर दिखाया, इससे आपको बात समझ में आएगी हो क्या रहा है। ये B पॉइंट पे ये चाहिए, उसने ये कहा है कि जो PA प्लस PB है वो 10 होना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, x1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y1 -0 z1 -0। तो इसे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्योंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए मैंने इसे चीजें यहां पर लिखी है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा सर, ये हो चुका है x1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, ये इसे भी रूप में दे देता हूं, अगले लाइन में रखूंगा। ये हो चुका है सर x1 +4 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर और ये हो चुका है इक्वल टू 10। अब देखिए हम लोग करने वाले हैं, हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे बोथ द साइड्स, क्योंकि हमें रूट खत्म करना है, मुझे इक्वेशन बनानी है, तो हम इसमें स्क्वायरिंग करेंगे बोथ द साइड्स। तो यहां क्या होगा, राइट हैंड साइड में तो 100 बन जाएगा, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2xy, बस हमारी जब इसका स्क्वायर करूं तो क्या रहने वाला है, x1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर हो जाएगा x1 +4 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर है ना। तो ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, x1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई में फिर से यही आ जाएगा क्या, x1 +4 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। यहां तक आपकी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। देखिए मैंने एक्चुअली इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई है कि अब यहाँ पर बन चुका है +2 रूट में इतना और रूट में इतना। अब इसे थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा, तो इस कैलकुलेशन में थोड़ा और इजी कर सकता हूँ। और वो इजी क्या होना चाहिए, होना तो ये चाहिए कि ये वाला पॉइंट है दिखा देता हूँ प्लस z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ये चलेगा ना। तो अभी मैं डायरेक्टली इसको स्क्वायर ले रहा हूँ, अभी नहीं लगाऊंगा इसको, कि अभी अगर मैं स्क्वायर लगाऊं तो इसे सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा ना, फिर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस मेहनत से बचने के लिए मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, जब देख लीजिए उस मेहनत से बचने के लिए मैं इस पर एक छोटा नंबर कर ले आता हूं। अब ये क्या बन जाएगा, या मैं यही कर देता हूं, ये बन जाएगा सर रूट में x1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस का z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस दो जाएगा सर x1 +4 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और प्लस z1 स्क्वायर। बात समझ आती है, मैंने क्या करा, इसको मैं कर लेंगे। अब इससे क्या होने वाला है, इससे क्या होने वाला है, हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करोगे, जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करोगे तो ये तो रूट खत्म हो जाएगा वाली, ये बन जाएगा x1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और प्लस z1 स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा, यहां लगेगा x माइनस y का होल स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस का 2x
क्या मुझे यहाँ पर रूट मतलब प्रोडक्ट में तो रूट नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब मैं इसकी इजीली कैलकुलेशन कर सकता हूँ। कैसे देखिएगा, अब y1 स्क्वायर से y1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, z2 स्क्वायर से z2 स्क्वायर कैंसिल हो ही जाएगा, है ना। और क्या होगा, x स्क्वायर में क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस 16 और माइनस का 8x1, ये बन जाएगा सर 100 प्लस का x1 स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 8x1, और ये हो जाएगा माइनस का 20 x1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस का z1 स्क्वायर, है ना। यहाँ के पास कितना आ गया, इसे यहाँ से x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 16 से प्लस का 16 कैंसिल होगा। ये जो माइनस का 16x है ना, ये जो माइनस का 20 रूट कर लेना होगा, इस पूरी चीज को उठा के बदलना होगा, तो प्लस का हो जाएगा, ये बन जाएगा सर 20 और रूट का हो जाएगा x1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस का z1 स्क्वायर, ठीक हो जाएगा 100, ये 100 आने वाला है प्लस, देखिए ये 8x1 था, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 8x1 हो जाएगा प्लस का 16x1, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, यहां से मैं क्या कुछ कॉमन आ सकता है, ऐसे हम यहां से सर 5 कॉमन, सॉरी 4 कॉमन आ सकता है, 4 हमको कॉमन हो जाएगा, 4 2 जा और 4 5 जा 20, 4 4 जा 16x1, और ये बन जाएगा 20 x1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अब देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा 5, 4 5 या 20। अब ओवरऑल क्या हो चुका है, मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, थोड़ा डिस्टेंस बदल लेना चाहिए, ये हो जाएगा सर 5 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 प्लस 4x। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे अगेन स्क्वायरिंग होता सेट्स करूंगा, ठीक है, जब मैं अगेन स्क्वायरिंग होता सेट्स करूंगा तो जब इसके स्क्वायर करूंगा क्या जाएगा, मिल जाएगा 25 प्रोडक्ट में x1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस का z1 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 प्लस का 16x1 स्क्वायर प्लस का देखो ये 25 हो जाए 50 54 जा 200 x। तो यहाँ तक ये चीजें आपके सामने आ चुकी हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं, ये बन जाएगा 25 टाइम्स ऑफ x1 स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 हो जाए 8x1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस 16x1 स्क्वायर प्लस 200x। फिर क्या बन जाएगा, इस मल्टीप्लाई कर देता हूं, हो जाएगा सर 25x1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 65 से 90 16 से 300 410, ठीक है, प्लस का ये बनेगा सर खाली x1 है ना, 8 5 40 8 2 60 होगा 20 x1 प्लस ये हो जाएगा 25 y1 का स्क्वायर प्लस 25 z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस का 16x1 स्क्वायर प्लस का 200x। अब देखो जरा ऐसे समझिए 200x1 से तो 200x1 कैसे नोट हो गया इसमें, क्या कुछ और कैसे नोट हो रहा है, और कुछ नहीं होगा, तो फाइनल आंसर मैं यहां पर लिख देता हूं कि अब जो फाइनल आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा, और वो है मेरा देखिए ये लिखा हुआ है 25x1 स्क्वायर, यानी 16 का इधर आएगा तो माइनस में आएगा 16, तो 25 माइनस 16 9 हो जाएगा, 9x1 स्क्वायर प्लस देखिए y1 स्क्वायर लिखता हूं 25 का स्क्वायर तो कुछ है नहीं, y1 ये जाएगा 25 y1 स्क्वायर प्लस 25 z1 स्क्वायर, तो ये हो गया ये हो गया ये हो गया इधर ये हो गया। अभी वैसे 625 जब 625 इधर आके साइड चेंज करेगा, है ना, तो क्या बन जाएगा ये, तो यहां पर एक्चुअली कोई भी 400 है क्योंकि 60 के 25 से 65 है 90 सॉरी 65 है 80 65 है 80 एंड 16 से 30 है 40 ले जाएगा 400, है ना, तो ये 65 इधर आके साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 625 माइनस 400 हो जाएगा माइनस का 225 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज आवर 12.2, है ना। तो आगे की एक्सरसाइज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 12.3, तो इसे आप एक्सरसाइज को रिवाइज करिएगा कई बार, और कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक क्लास।